very special, very precious to us because for me and my family, they are like our son. And he is from Arabic country, so he speaks Arabic too. And when we were at home, we tried to speak it little bit. Praise God. खुदावंद अपने लोगों को हर तरह के माहौल में ढालता है, जहाँ जहाँ वो जाते हैं उनको थोड़ा बहुत उर्दू भी आता है, इसलिए कि हमारी ज़ुबान, हमारे अल्फाज जो हैं वो मिलते जुलते हैं, इसलिए वो भी समझ सकते हैं, समझते भी हैं। हम इसके लिए भी खुदावंद की शुक्रगुजारी करेंगे। और ये हमारी ग्रीन टाउन की बहनें और हम सब बड़ी खूबसूरती से गाते हैं, क्योंकि हमारा अब का जो टॉपिक है इस साल का, जहाँ जहाँ हम बाइबल स्टडी दे रहे हैं, वो यही है कि जीसस इज़ कमिंग वेरी सून। सो वी आर टॉकिंग अबाउट दिस all the time, every Monday, every Wednesday, wherever we go, we try to convince the message of Jesus Christ. यीशु मसीह के नाम का उसका जो पैगाम है, उसने जिस दिन मुनादी करना शुरू किया, उसने कहा तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नज़दीक है। ये पहले अल्फाज थे यीशु के, ठीक है ना? तो आज भी वो यही कह रहा है कि तौबा करो क्योंकि मैं जल्द आने वाला हूँ और हर एक के काम के मुताबिक देने के लिए अजर मेरे पास है। तो तौबा करना मतलब तैयारी करना। तो हमारी बहनें गाएंगी, लाड़िए नहीं खिंच ले तैयारियाँ, तेरा लाड़ा आने वाला है, यीशु राजा आने वाला है। तो आइए हम प्रस्तुत करेंगे। तेरे
to get ready. And this song says that get ready because your groom is coming. And he is coming very soon. So get ready in every aspect, not for one, but in everything. Everything you have to get ready for him. So we are thankful to our choir, and they sing it very well. तो आइए खुदावन के नाम के लिए, जलाल के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे, जोरदार तालियां बजाएंगे, क्योंकि हमारा खुदावन ऐसा मुहीब है, ऐसा जलाली है, ऐसा प्रस्तुश के लायक है कि कोई आसमान के नीचे, जमीन के ऊपर कोई दूसरा नाम बख्शा नहीं गया जिसके वसीला से नजात हो। एक ही नाम है और वो यीशु नाम है, और वो हमें बख्शा गया है। हम मुबारक लोग हैं जिनको यीशु नाम बख्शा गया है। खुदावंद के नाम को जलाल, सारी इज्जत, सारा जलाल खुदावंद के नाम को मिले। इससे पहले कि हम कलाम की तरफ जाएं, खुदा के खादम को वेलकम करें, मैं छोटी सी जो हमारी हर साल की एक हम लिस्ट तैयार करते हैं कि हम विमेन मिनिस्ट्री में क्या क्या काम करते हैं, तो मैं बुलाऊंगी सिस्टर एडलिन को। तो इसमें हमारा सबसे जो है कि टू स्प्रेड द गुड न्यूज़ all over the world, that we know that we can't go to everywhere or we can't visit all countries, but through prayers, through our requests, we can go everywhere, because God knows everything, that wherever people are in need, what they need, and how He will fulfill their needs. Then the second goal is that we taught all positive characters among the women. We shared those even negative characters, so people will know, women will know that we have to avoid those things and follow those positive characters. So हमने, आप जानते हैं कि हमने जब शुरू किया तो हमें औरतों के किरदार से, और उसमें बैड कैरेक्टर्स जो थे, बुरे किरदार जो थे वो भी, और बाइबल के तमाम जो कैरेक्टर्स थे, पॉजिटिव कैरेक्टर्स, उनको भी हमने शेयर किया. And one goal is that we have to visit door to door, and that is our goal, and that is we are fulfilling through visiting different homes, different houses, and when we visit, those people invites many relatives and people surrounding them, then we are enjoying those meetings also. The fourth is that we assess the needs of needy people, and whatever we can do according to our pockets. So we do that. We are not boasting that we are doing too much, but little bit according to their needs we are doing. The fifth one is we are preparing all women for the second coming of Christ, and because of that, they and their families, their husbands, many were drunkards, many were in bad habits, and they came to Christ. Their home and their children, they have changed their life. Especially, we know that many people, they were, when we came newly here, they were asking so many things, and they were telling us that we don't have this, we don't have this. But now, I think since 2 years, we have noticed nobody asks anything. They are now independent. They are managing themselves. God is providing everything to them because of their teaching and because of sharing that who is Jehovah Jireh and how He provides when we trust, when we have faith in Him. They all are now
fulfilling their needs, their own. So we thank God for these things. तो उनको पता है कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, हमारे गोल्स क्या हैं, चूँकि हम गाहे बगाहे इन गोल्स को शेयर करते रहते हैं कि क्या हमारे मकासद हैं इस वुमेन मिनिस्ट्री के. तो खुदावंद आपको बरकत दे, कसरत से बरकत दे. Now it's time to welcome our guest, as our tradition is to pay the regard with bouquets and flowers and malas. So I would like to invite our pastor sahib to come forward, and then Mr. Peter Charles will come and he will introduce the person and we will welcome him. बहुत शुक्रिया जी. आप सबको ग्रेस बाइबल फेलोशिप चर्च में हम वेलकम करते हैं. स्पेशली वी वेलकम टू आवर गेस्ट ब्रदर्स इन आवर चर्च, ग्रेस बाइबल फेलोशिप चर्च. तो मैं ये चाहूँगा कि इस छोटे से हिस्सा को पीटर साहब भी लीड करें. वो थोड़ा सा बताएं गेस्ट के बारे में, बैकग्राउंड या उनकी जो मिनिस्ट्री या खिदमत के बारे में वो ज़्यादा जानते हैं. तो प्लीज़ आइएगा और इसी दौरान जो है फिर हम अपने गेस्ट को वेलकम करते हैं. हेलो जी, थैंक यू वेरी मच पास्टर. हमारे आज के जो गेस्ट हैं इनका नाम डॉक्टर जोसेफ नसरुल्ला. इनका ताल्लुक जो है मिस्र से है, इजिप्ट से, और अभी ये अमेरिका से अपनी खिदमत जो है आजकल कर रहे हैं. और यूएसए में क्रॉस टीवी जो कि एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है उसके थ्रू खिदमत में हैं. इसके साथ साथ वे टीवी जो है वो इजिप्ट से इनका जो मीडिया का है वो चलता है और पूरी दुनिया में खिदमत करते हैं. और ख़ास तौर पर दिल रखते हैं पाकिस्तान में बसने वाले मसीहों के लिए भी. ये डिफरेंट जगह बार बार ये पाकिस्तान अक्सर आते हैं और लोगों के लिए दुआ भी करते हैं. और खुदावंद ने इनको दुआ की और ख़ास बरकत दी है और शिफा का तोड़ा जो है वो खुदावंद ने इनको दिया है. और इनके वसीला से बहुत सारे मौजज़ात जो हैं वो पूरे पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में होते हैं. तो मैं चाहूँगा कि आज, क्योंकि हमारा स्पेशल जो प्रोग्राम था वुमेन मिनिस्ट्री के तवज्जुह से था या बिहाफ पे था, तो मैं चाहूँगा कि वुमेन मिनिस्ट्री की जो हेड हैं हमारी मास्टर एडलिन, सिस्टर एडलिन को बुलाएं और वो जो है वो आके फूल पेश करें डॉक्टर जोसेफ को, द हेड ऑफ वुमेन मिनिस्ट्री. So we also have another pastor here with us today. हमारे साथ एक और खुदा के खादिम हैं जो मेरे बचपन के दोस्त भी हैं, मेरे क्लास फेलो भी हैं. क्लास 2 से हम कैथेड्रल स्कूल में इकट्ठे थे और खुदावंद ने इनको खिदमत का तोड़ा दिया है और एज अ पास्टर चुना है. जब मैं स्कूल में थे तो ये मुझे पास्टर या पादरी कह के छेड़ते थे बचपन में. तो खैर ये पास्टर बन गए, मैं नहीं पास्टर बना अभी तक. खुदावंद करेगा जो उसकी मर्जी है उसके लिए. लेकिन हम वेलकम करेंगे पास्टर कशान. खुदावंद के फजल से पूरे पाकिस्तान में ये भी खिदमत कर रहे हैं, सिंध में, बलूचिस्तान में, बच्चों में इनकी मिसेस की खिदमत है. और संडे स्कूल के बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम्स हमने देखे हैं. सोशल मीडिया पे भी आप अक्सर इनको देखते हैं. तो पास्टर कशान को भी हम वेलकम करेंगे और मैं चाहूँगा पास्टर आसिफ साहब आएँ और उनको माला पहनाएँ. करो तालियों के साथ वेलकम करेंगे हम. पास्टर मकसूद साहब आप भी आएं और पास्टर जोसेफ, डॉक्टर जोसेफ को भी माला पहनाएं. भाई मकसूद साहब आ जाएं आप भी. और पास्टर परवेज भी आएंगे, वो भी माला पहनाएं डॉक्टर जोसेफ को, क्योंकि आप लोगों ने काफ़ी ऑलरेडी वेट किया है और हम चाहेंगे कि इस प्रोग्राम को लंबा ना करें. तो हम अब खुदावंद के कलाम की तरफ जाएंगे. तो वी वुड रिक्वेस्ट डॉक्टर जोसेफ टू प्लीज शेयर द वर्ड ऑफ गॉड नाउ. वी आर ऑल वेटिंग एंड रेडी फॉर दैट. जी, we'll have a small prayer before they call you for the sermon. बहन हमारी बुजुर्गा घर घर जाती हैं, हर रोज कम से कम 5-6 घरों को विजिट करती है, हर रोज बिला नागा.
और फिर आकर चर्च की तैयारी करती हैं, चर्च की सफाई करती हैं और संडे को भी सबसे पहले आकर खुदावन की खिदमत करती हैं। और ये जितनी बहनें यहाँ पर आती हैं, ये ज़्यादातर बहनें हमारी बहन की वजह से, सिस्टर नसरीन के तवसत से जो है वो इस चर्च में आती हैं, क्योंकि बहुत सारी बहनें हैं जो वो इस चर्च से इलाका नहीं रखती लेकिन इस ग्रीन टाउन से हैं, इसलिए सिस्टर हर घर में विज़िट करते हैं। उनको जाके सुबह के टाइम इनकी 10 से 11 इबादत होती है, जिसमें वो जाती हैं बेटियों को कलाम सिखाना और फिर उनको ये बताना कि आपने आगे कैसे शेयर करना है। तो इनकी बहुत बड़ी खिदमत जो है इस इलाका में है, इसके लिए हम खुदावन का शुक्र करेंगे। आए सब अपने सर को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे और दुआ करेंगे। अब तक प्रस्तिज में खुदावंद ने हमारी रहनुमाई की, सहायता की, हमने खूब दिल भर कर प्रस्तिज की है और अब जब बारी है कि खुदा हमसे कलाम करे, हमसे बोले, तो हम अपने आप को सब तैयार करें कि खुदा का बंदा जब कलाम करे और हमारा दिल, हमारा जहन और हमारे कान उसके तरफ लगे रहे, ताकि आज कोई भी यहाँ से खाली ना जा सके। खुदा कदूस मेहरबान जिंदा जलाली आसमानी बाप, मैं तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़, तेरी तमजीद करती हूँ। खुदा इस वक्त, इस घड़ी के लिए खुदा बाप, जो तूने मेरी और इन तमाम कलीसिया के खुदामदा तूने बख्श दी कि हम तेरे हजूर में आकर खुदा हम तुझे सिजदा कर सके। खुदा हम तू ही सिजदे और ताज़ीम और इज़्ज़त और बुजुर्गी के लायक है। खुदा मैं तेरा शुक्र करती हूँ, तेरी तारीफ़, तेरी तमजीद करती हूँ। खुदा फिर बाप तेरे खादम को, तेरे मंसूब को खुदा, जो दूर दराज से खुदा बाप तेरा कलाम लेकर हम तक आया है, खुदा खुदामदा तेरे बंदा को खुदा मैं तेरे सुपुर्द करती हूँ। खुदा उसके सर के बालों से लेकर पाँव के तलवे तक उसे चुना और खुदा उसे ब्लेस करना। और आज खुदा में जो कलाम खुदा बाप जो तूने हिस्सा बेहिस्सा नबियों के साथ किया, वही कलाम आज तू अपने खादम के वसीला से इस कलीसिया के साथ और इन बहनों के साथ आए हुए सारे मेहमानों के साथ हो। खुदा मैं तेरा शुक्र करती हूँ, कोई भी यहाँ से खाली हाथ ना जाए, बल्कि बरकत को रिसीव करके जाए और दूसरों को भी इस कलाम के बारे में बता सकें, ताकि दूसरे भी बरकत पा सकें। जो कुछ मांगा सो पाया, मांगती मसीह यीशु के नाम से, आमीन। Now we will welcome with our interpreter to Pastor Joseph. Come on the stage and share the word of God. Big hands for Pastor and especially for the word of God. And Sister Adeline will come to translating. Praise the Lord. Can you shout hallelujah? Hallelujah! Oh, you understand English. That's good. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah is one word that And is I need the all mama. over the Can world. mama stay here a little bit? People Because can I have understand. a prophecy for you. I have some prophetic word for you. Can you translate? Praise Can you the Lord. translate? Yes, I have yes. a prophetic word for her. तो मैं पास्टर साहब कह रहे हैं कि मैं सिस्टर आफिया के लिए खुदा ने मुझे नबूवती कलाम दिया है, तो मैं अभी शेयर करना चाहता हूँ। So you translate to me. When I see you the first time, I saw your son before, but when I see you the first time, मैंने आपको पहले भी देखा, लेकिन अभी जब सामने मैंने आपको कई बार देखा, the man of God, Mr. Peter, have been invited me to his house, but we went first to her house and Baba house. तो पीटर ने हमें अपने घर में मदऊ किया, तो सबसे पहले सिस्टर आफिया से भी मेरी मुलाकात हुई। The Lord showed me there is a big fire inside your heart. तो खुदा ने मुझे एक बड़ी आग इस बहन के अंदर दिखाई। When I shake hand with her, I feel electricity coming out of और her. जब मैंने आफिया के साथ, सिस्टर आफिया के साथ हाथ मिलाया, तो ऐसे जिससे इनके हाथों से बिजली निकली। And the Lord showed me, hallelujah, glory to God. You have been waiting and sowing in the women life. तो खुदा ने मुझे दिखाया, बताया कि तू बड़ी देर से बीज बो रही है। And you can see
something it was underground all the time. When I will see the tree will come? When, Lord? You have been asking him. तो जो बीज बोया गया है वो गहरा जमीन के नीचे है और आप इंतजार कर रही हैं और बार बार खुदा उनसे पूछती हैं कि ये कब फलदार होगा. And this tree is the ministry of the woman here. It was like with the wind, go like this, like this, like this. Very small tree going like this. And she always like trying to protect. और ये वो दरख्त जो है वो आंधियों में तूफानों में घिरा हुआ है और आप उसको बचाने की उसकी हिफाजत करने की कोशिश कर रही हैं. And he showed me her hands joining another hands to protect this small tree is growing in this place. खुदावंद ने ये भी दिखाया कि सिस्टर आफिया उस दरख्त को दूसरे लोगों के साथ मिलकर उसकी हिफाजत करने को है. And you keep asking the Lord was crying when I can see a big fruit from this tree. और खुदा ने ये भी खादम को दिखाया कि सिस्टर आफिया उसको अपने हाथों से बचा रही है और इस इंतजार में है कि कब ये बहुत बढ़ेगा और बहुत सा फल लाएगा. I have a good news for you tonight. मैं आपके लिए एक खुशखबरी लेके आया I हूं. have a good news for you tonight. उस तमाम बहनों आपके लिए भी पास्टर साहब एक This खुशखबरी लेके आए. tree will become very big tree. Very soon you're going to have a big harvest over this ministry. Very soon. ये बीज जो बोया गया है और ये दरख्त जो बढ़ना शुरू हुआ है ये बहुत बढ़ेगा और बहुत सा फल लाएगा. Hallelujah. Big harvest is coming very soon. हालेलुया हालेलुया. तो ये फसल जो हम काटने को है ये बहुत बड़ी फसल होगी और बहुत जल्द हम इसका रिजल्ट जो है वो देखेंगे. In the night you go with tears in the night. तो मैंने ये भी देखा कि रातों को आप दूसरों के लिए आंसू बहाती हैं. The good thing about our God, he see your tears all the time. तो खुदावंद यीशु मसीह और खुदा कद्दूस के लिए हम शुक्र करते हैं कि वो हमारी आंखों के आंसू को देखता है. But in the morning, hallelujah. लेकिन वो सुबह आने वाली है. In the morning, hallelujah. वो सुबह Come आने on, वाली in the है. morning, hallelujah. Joy, 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 joy. हाँ जी, तो आप तालियों से तालियां बजाएं एक दफा फिर जोरदार तालियां. Blessing. खुदावंद यीशु मसीह के लिए Blessing to you. वो जो हमारे आंसू को देखता है वो जो हमारी मेहनत को देखता है. So it's going to be with you as well. तो अभी आपसे मुखातिब होते हैं. It's yours as well to this morning, this afternoon. तो आज की ये बात आज दोपहर मैं आपसे बात करने के लिए And आया हूं. I can speak Arabic with my translator. No, not because I know Just translate, just translate. a can little speak. bit. I know Arabic, but I know Kuwaiti Arabic. He is from Egypt. Yes. And that is No, I can different. speak Kuwaiti. Kuwaiti Yeah, also. I can speak Kuwaiti if you like. It's not a big challenge for me. Okay, okay. So, Hallelujah. I'm so we are going to speak two languages, Arabic as well as English. No, I and get it. I will translate in Urdu. both of them. Amen. I'm so delighted to be with you. मेरी खुशी है कि मैं यहाँ आज आपके दरमियान हूँ. I met Mr. Peter in Dubai, मैं पीटर से मेरी मुलाकात दुबई में हुई. and he was in the studio for the Way TV and the Cross TV. We have a little branch there. तो वहाँ पे एक शाख है तो उस स्टूडियो में मेरी मुलाकात पीटर के साथ हुई. And the moment I meet him, he came to meet me. I sit with him. He said, I am launching a party, the political party in Pakistan. I was shocked. I said, what? Hallelujah. तो पीटर ने जब अपना इंट्रोडक्शन करवाया अपना तारुफ करवाया तो उसने कहा कि मैं एक पॉलिटिकल पार्टी जो है वो चला रहा हूँ और आप जानते हैं कि वो माइनॉरिटीज के लिए काम कर रहा है पाकिस्तान में
अपनी सारी खिदमत के अलावा। So I was so touched by the man who sacrificed to be on the front, saying that the Christians in Pakistan, they have a voice. Hallelujah. हाँ, Come on, somebody. मैं बहुत खुश हुआ पीटर को देख के कि वो मसीहियों के लिए एक बड़ी आवाज बन रहा है खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से। Today I'm gonna speak about political position in the Bible, not because I know Mr. Peter, but because the Lord needs to elevate you to the other level. Say amen. Hallelujah. तो मैं आज आप लोगों के साथ उन सियासी बातों को भी जो बाइबल के अंदर से मैं आपको बताऊंगा, इसलिए नहीं कि मेरी मुलाकात पीटर से हुई, लेकिन मेरे दिल में ये बात है कि मैं उन मामलात को भी आपके साथ शेयर करूं। We have a lot of political people in the Bible. बाइबल के अंदर बहुत सारे सियासी लोग हैं। Daniel, one of them, you know Daniel? दानियल को आप जानते हैं, He is a very political man of God. जो वो एक पॉलिटिकल शख्स था जी। But those political men of God, they are little crazy. हाँ, जो पॉलिटिकल लोग होते हैं वो थोड़े They are not हाँ, आप जानते हैं कि ये Out of the box. झूठ और सच मिला के बात करते हैं। पॉलिटिक्स को लोग यही कहते हैं, सियासत को, कि झूठ भी साथ चलता है और सच भी चलता है। when the king say bow to me, they said no, we're not bowing to you, I'm bowing to God himself. Hallelujah. लेकिन दानियल को हम देखते हैं कि वो एक बहुत मजबूत शख्स था। वो अपने आप को इतना मजबूत कि जब हालात ऐसे थे और लोगों ने कहा, बादशाह ने कहा कि 30 दिन तक मेरे सिवा किसी और की प्रस्तिश नहीं होगी, तो उसने कहा नहीं। वो हस्बे मामूल अपनी खिड़की खोलता और खुदा की इबादत करता रहा। So praise the Lord. Hallelujah. I know she's a preacher, right? Because I say one word, she preach. Hallelujah. Because I want them to understand each and everything. Amen. Yes. Amen. Sorry. If So, you want me to be brief, yeah, one brief, I will statement by statement, okay? So I can Okay. address what I need to say. So Daniel, say with me, Daniel was a favorite from the Lord. Daniel was favored from the Lord. दानिएल को खुदा ने अपनी तरफ से जो है वो फेवर दी, He never bowed to the king. इसलिए कि वो दुनिया के बादशाहों के सामने नहीं झुका। But the Lord sent him the lions who are not eating anybody there. Hallelujah. हाँ, तो खुदा ने वो शेर भेजे जिन्होंने दानिएल को टच नहीं किया, उन्होंने that- उसको नहीं खाया। That lions was a bellow for him, like हाँ, दानिएल को जो शेरों की मान में डाला गया, उन शेरों ने दानिएल को, चूंकि वो सुस्त और उसकी फेवर में थे, चूंकि if the people will go against you, if the people go against you, अगर दुश्मन आपके खिलाफ जाता है, the Lord will protect you and give you miracle while you are doing this political mountain. Hallelujah. हाँ, तो खुदावंद जो है आपको बचाने की कुदरत रखता है उस दुश्मनों से। He will send you the lions to make you as a bellow. Hallelujah. And then the king will come and say, get alive because you are worshiping the right God. Hallelujah. तो अगर दुश्मन शेर भेजता है तो शेर जो है वो सराहने पे सर रख के सो जाएंगे, लेकिन आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। And for the girls, there is a very political, beautiful woman in the Bible. तो आपके लिए बहनों, बाइबल के अंदर एक खूबसूरत औरत का जिक्र है। What's her name? Wow, very good. Esther. Say with me, Esther. जी, अस्तर। Esther, she doesn't have a dad and mom. She's with a widow, like she is with यतीम थी। आप orphan. जानते हो कि अस्तर जो थी वो यतीम थी। But the Lord doesn't need you to have availability or something like ability in your life to be an Esther. She have nothing, no ability. तो खुदा जो है उसके लिए ये कोई हकीकत नहीं रखती बात कि हमारे इर्द गिर्द रिश्तेदार हों, सारी की सारी सहूलियात हमारे पास हों,
खुदा को इससे कोई गर्ज नहीं। So what the Bible have been saying that Esther was taken to the king. She was taken as from the house to the king. तो आस्तर आप जानते हैं कि जब वो असीर होकर आई तो उसके बाद किस तरह मलका के तौर पर उसको बादशाह के पास ले जाया गया। She didn't promote herself. उसने अपने लिए कुछ नहीं किया। She didn't say, I have this, I have this, I have this, so I can be with the king. She didn't do that. ना आस्तर के पास कुछ था और ना ही उसने कहा कि मेरे पास ये भी है, ये भी है, इसलिए मैं बादशाह के हुजूर जाने के लायक हूँ। But the Lord had been moving with his plan to put her in front of the king suddenly. Hallelujah. हाँ, ये खुदावंद का अपना बनाया हुआ मंसूबा था आस्तर के लिए, जिसके वसीले से वो बादशाह एक्सपीरियंस के हाँ पहुंचाई गई। That's what I feel about this ministry in my heart. हाँ, मैं अपने दिल में ये जो मिनिस्ट्री है हम भी यही कहते हैं। And you can, if I speak about Esther, you can have the same as a man, okay? हाँ, अगर मैं आस्तर की बात कर रहा हूँ तो आप सबके लिए भी सेम है, मर्द हो औरत हो, सबके लिए वही बात है। That's what the Lord have been saying to me. This ministry will raise a lot of Esthers to stand in front of the king, and she will have favor in the name of Jesus. Hallelujah. Come on. खुदा मुझे बता रहा है कि ये जो जमात है बहनों की, इसमें से कई आस्तर उठ खड़ी होंगी खुदा की खिदमत करने के लिए। Who need to be Esther? Who need to be Esther? Wave your hands right now. आप में से जो आस्तर बनना चाहती हैं वो अपना हाथ खड़ा करें। So he don't look at you. You're gonna say to me, Pastor Joseph, I don't have. तो आपको ये कहने की जरूरत नहीं कि मेरे पास तो एबिलिटी नहीं है, मेरे पास तो पैसा नहीं है, मेरे पास तो ये चीजें नहीं है जिससे मैं खुदा की खिदमत कर सकूं। Actually, the more you don't have, the more the Lord will position you. Hallelujah. जितना आप खुदा पे डिपेंड करते हैं, खुदा पे भरोसा रखते हैं, उतनी ही ज्यादा चीजें खुदा आपको प्रोवाइड करेगा। Because hallelujah, that's what the Lord gonna do. Hallelujah. So you are ready to be positioned, not promoted. Positioned, not promoted. तो आप उसके लिए पूरे तैयार हो, पोजीशन ले लें कि मैं बिल्कुल तैयार हूं। And I can tell Esther has a very sad past. In the past, there is a lot of bad things happen to her. तो पासब कहने के मैं ये कह सकता हूँ कि आस्तर का जो पास था या उसकी जो पिछली जिंदगी थी उसमें बहुत सारी ऐसी नाकामियां थी जो जिसके लिए वो परेशान रहती थी। So sometime you are sitting crying. Sometime you're sitting crying. और कभी ऐसा वक्त आता है कि हम में से हर कोई रोता है, परेशान होता है। Because a lot of things happen in the past in your life. चूंकि आपके जो पहले दिन है, पिछली जिंदगी है, उसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनको याद करके भी और जो वो हो चुकी हैं। Maybe my husband treated me bad. Maybe my kids have been leaving me. Something happened in the past. तो हर जिंदगी में कोई ना कोई ऐसी बात होती है। ये हो सकता है कि कभी किसी के हस्बैंड ने उसे छोड़ दिया हो, कभी बच्चे तंग करते हों या छोड़ के चले गए हों। तो इस तरह की बातें जो हैं वो जिंदगी में हमें रुलाती हैं। But I have a good news for you tonight. लेकिन मेरे पास आपके लिए खुशखबरी है। Whatever your past is bad, the Lord will cover it. He will restore everything have been stolen from you. आपका पिछली जिंदगी कैसी भी थी, खुदा के पास आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी है और इस कलाम के वसीले से आप बहाल होंगे। Hallelujah. So lift your hand with me because I need to finish in the time. I have 5 points, but the Lord is leading me to pray for your past and for anything had been holding you in the back. तो आप जैसे जैसे पासब कहते हैं अपने हाथ उठाइएगा। अगर कोई जिंदगी में आपके पिछली जिंदगी में इस तरह की बातें हैं तो उनको देख लीजिए, क्योंकि पासब स्पेशली आपके लिए दुआ भी करेंगे उन बातों के लिए।
And Esther has a very big problem happened. Her own people has a lot of problems and she is the queen. इस वक्त जबकि हम बात कर रहे हैं तब आस्तर जो है वो मलका थी और आप जानते हो कि उसके मुल्क के अंदर यहूदियों के साथ बहुत बुरा सलूक हो रहा था, उन्हें बेच दिया गया था, उस वजह से वो बहुत परेशान थी। She has two options. उसके पास दो रास्ते थे। The one option is to be silent, don't talk, एक रास्ता था वो चुप रहती and the other option to start talk in behalf of her people. और दूसरा जो उसके पास मौका था वो ये था कि वो अपनी कौम की खातिर बोलती और दिलेरी से बोलती। And she chose to speak out. तो उसने दूसरा रास्ता चुना कि अपनी कौम के बिहाफ पर वो बात करे और दिलेरी से करे। She didn't say, I don't care, I don't matter, I'm a queen, I'm okay. But when she see her people suffering, she start to talk. तो उसने ये नहीं कहा कि मेरे पास तो सब कुछ है, मैं तो मलका हूँ, मेरे पास तो हर फैसिलिटी है, मैं क्यों बोलूँ। लेकिन उसने ये रास्ता चुना कि अपनी कौम की खातिर वो बहुत दिलेरी के साथ उसने बादशाह के सामने वो बात रखी। Sometimes the devil trying to make you silent. अक्सर ऐसा होता है कि लोग कहते हैं चुप कर, तेनू की लगे देना, है ना। He gonna say to you, don't go in trouble, don't talk too much. अभी पास साहब ने मुझे कहा Don't talk too much. उतना ही बोलो, है ना। Don't talk too much. The devil trying to say to you that. That's why I'm telling you now. Pastor told me to not to talk too much. That's my dad said that the same to me. When I was young, he keeps saying shh, shh in the church. Shh, shh. That's why when the people worship. तो कभी कभी नहीं हम अपने टॉपिक पे आते But हैं। right now I shout hallelujah. हालेलुया। जी, तो बात कर रहे थे कि हमें कभी कभी लोग मना करते हैं कि बहुत ज्यादा ना बोलो। So I need you to stand on your feet. तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सब अपने And कदमों I पे need खड़े to हो जाएं। ask Pastor Kashan to translate for me while the prayer. So I finish already my ceremony. I ask Okay. Pastor Kashan to translate Okay. so I can deliver something for the people. तो पास्टर का शान आएंगे और बाकी का हिस्सा So I need to give the hand to the woman of God. Hallelujah. Thank you. थैंक यू। हालेलुया। So right now when we speak about Esther, और जैसा कि मैंने आपके साथ आस्तर के बारे में बात की, there is a lot of suffering in your heart. और आज आपके दिलों में भी बहुत सारे आप परेशान हैं दिली तौर पर, और आप भी अपनी परेशानियों में जो दिल में दरियाफ्त I करते हैं can see परेशान a हैं। lot of people here suffering and crying all the night. और बहुत सारे यहाँ पर जो रातों को रोते हैं और अपनी मुश्किलों में फंसे हुए हैं और वो इसके लिए रोते भी हैं। Right now, the Lord will promote you to be Esther in the name और of आज अभी इसी Jesus. वक्त खुदा आपको एस्तर की तरह खुदा बरकत देगा। The Lord need you to touch you tonight. और Hallelujah. खुदा अपना हाथ फैलाकर आपको छुएगा, आज आपको शिफा देगा। He need to heal your past. और वो आपके गुजरे वक्त को, जो आपका गुजरा हुआ वक्त है, जो आपका गुजरे अयाम है, खुदा उसके बारे में भी, उसके लिए भी आपकी जिंदगी में काम करे। He need to heal you tonight. और वो आज आपको शिफा देगा। So anybody has a sickness or a broken heart, the Lord will restore you tonight. और आज खुदा आपकी तमाम जो बीमारियां हैं, जो आपकी परेशानियां हैं, खुदा उनको बहाल करेगा, जो आपके गुजरे वक्त में भी थी, और आज ये वक्त है कि खुदा आपको मुकम्मल तौर पर ठीक करेगा। He bringing you tonight to hear this encouragement. और आज ये शाम इस वक्त की जो खुदा ने मखसूस की है, वो इस वजह के लिए कि आपको खुदा बहाल करना चाहता है। You're not born to be crying the all night. और आप रोने के लिए पैदा नहीं हो कि सारी रात तुसी रोंदे रहो। There is a breakthrough will happen over आज your खुदा life. ताड़ी जिंदगी चो काम करना चाहता है, जेड़ा आज तो पहले कदे नहीं जो होया। That's why we're gonna pray tonight और आज रात मैं इसलिए ताड़े नाल दुआ करांगा, to have this healing anointing. और आज ताड़े जिंदगी चे खुदा अपनी शिफा नु जारी करेगा। So if you feel you have been forsaken in the past, or somebody have been breaking your
your heart in the और past. गुजरे वक्त च किसी ने ताड़ा दिल दुखाया तानू ताड़ी जिंदगी च किसी ने ताड़े लिए बुरा कीता है बुरा सोचा तो यकीनन खुदा आज तानू बहाल करेगा If you have rejection before, और ताड़ी जिंदगी च अगर तानू किते ना किते मलामत उठानी पई है या तानू जलील या रुसवा कीता गया I have a good news for you. आज ताड़े लिए खुशी दी खबर है You're not going out of this door without having your breakthrough. बाहर Hallelujah. जाओगे तो तुसी ये सब कुछ छड़ के जाओगे और नए बन जाओगे You're gonna हालेलुया। go home having some breakthrough. और आज खुदा अपने हाथ दे वसीले तानू ताड़ी जिंदगी च सब कुछ बहाल करेगा और अपना हाथ बढ़ाएगा Not because Joseph or Pastor Kashan or anybody, because Jesus is here tonight. Hallelujah. ना के बाद हो रबा कि ना के ब्रदर जोसेफ की वजह तो ना मेरी वजह तो बल्कि खुदा अपने रूह दे वसीले ताड़ी जिंदगी से काम करेगा और सब कुछ नया हो जाएगा हालेलुया। All you need is just touch him. और सिर्फ तालु खुदा दे छून दी जरूरत है So I'm asking you right now और मैं तारे को कुछ कहना चाहना to वा lift your hand in front of the Lord. तुसी अपने हाथ अपने खुदावन वल बदा लो If you need to be promoted, if you need to be positioned as Esther in the Bible, और आज तुसी अपनी जिंदगी च आस्तर बनना चाहते जे ते अपने हाथ पूरे तौर पे आसमान वल उठा लो the Lord can do it.